So we have determined an equation for the emitter current, and based on the numerator we determined one condition and another condition based on the denominator, and we would like a numerator and denominator stay as stable as possible, as constant as possible. So the two conditions are VBB needs to be very greater than VBE, because VBE changes with temperature. So this condition will ensure that IE is not changing much with temperature. And the second requirement is that RE, the emitter resistance, should be as large as possible relative to RB divided by beta plus 1, ताकि बीटा की चेंजेस को cater for किया जा सके. Or in other words, RB by beta plus 1 has to be as small as possible relative to RE. So let's examine कि इन दोनों conditions का क्या meaning है exactly, and what is practically possible. So let's first take a look at condition 1. So condition 1 ensures that the numerator expression का जो है it stays as constant as possible despite of the changes in VBE. अब अगर आप कहते हैं कि VBB needs to be very large relative to VBE, so let's establish कि क्या limit क्या है. So यहाँ पर let me apply KVL here and stop the KVL at this point. यहाँ पर मुझे नोड वोल्टेज पता है और वो मेरे पास अगर VB है, so I can just apply KVL अप्लाई करने के लिए just आपको एक complete path चाहिए. तो अगर ये नोड वोल्टेज पता है तो we can end the KVL here. So what I'm saying is कि by KVL VBB is, ये आपकी पैसिव साइन कन्वेंशन है, IB RB plus VB, और VB is equal to VBB minus IB RB. So VBB को लार्ज रखने का मतलब ये है कि VB को लार्ज रखें, right? So if you are saying कि VBB needs to be very large, that is equivalent to saying कि VB needs to be very large. So VB को आपने लार्ज रखना है. So VB को लार्ज रखने की क्या implication है? यहाँ पर देखिए, let me apply KVL along this loop. यहाँ पर मैं KVL अप्लाई करूँगा और VB पे एंड करूँगा ताकि मेरे पास कोई tangible comparison आए. So by KVL, this is passive sign convention, this is VCB. So VCC can be written as ICRC plus VCB plus VB. So what I'm saying कि एक ये ड्रॉप है, एक ये ड्रॉप है और उसके बाद एक ये VB है. तो ये मैंने पूरा KVL यहाँ पर अप्लाई कर लिया. देखिए इन दोनों KVL एक्सप्रेशंस ठीक हैं, एग्री करते हैं इनके साथ. हाँ जी ठीक है. KVL यस सर. अब इसका हम देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है एग्जैक्टली, व्हाई वी आर राइटिंग दिस KVL इन दिस वे. ये देखिए पहली चीज़ हमने कहा है ICRC. इमेजिन करें कि कॉमन एमिटर टोपोलॉजी है आपके पास. सो कॉमन एमिटर टोपोलॉजी में रिकॉल करें, यू अप्लाई द सिग्नल आप एक कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू अप्लाई करेंगे यहाँ कहीं, राइट, और आउटपुट आप एक कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू ले सकते हैं यहाँ पर. मैं अभी कंप्लीट एम्पलीफायर सर्किट यहाँ पर ड्रॉ आपको दोबारा करके दिखाता हूँ. अभी जस्ट ये नोट करें कि आउटपुट विल बी टेकन एट द कलेक्टर टिपिकली थ्रू अ कपलिंग कैपेसिटर. वाई थ्रू अ कपलिंग कैपेसिटर वो भी अभी बात करते हैं. अभी जस्ट ये नोट कर लें कि कॉमन एमिटर के केस में एंड ऑल्सो इन कॉमन बेस टोपोलॉजी आउटपुट इज टेकन एट द कलेक्टर and output is typically taken through a coupling capacitor and then applied to a load, for example a loudspeaker. So imagine करें कि ये आपके पास कलेक्टर है, कलेक्टर के ऊपर टोटल वोल्टेज है. सो ये कलेक्टर की टोटल वोल्टेज है, ये मैंने कोई DC वोल्टेज सेट की हुई है VC, और यहाँ पर व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो एक सिग्नल स्विंग आएगी और आउटपुट के रिस्पेक्ट से इट विल गो अबव एंड इट विल गो बिलो, राइट. सो इस नोड के ऊपर आप कितना जा सकते हैं? इस नोड के ऊपर जो वोल्टेज है, एक DC वोल्टेज पे तो आप खड़े हैं, इससे आप ऊपर कितना जा सकते हैं, जो कि AC वेरिएशन है, यानी ये हाइट कितनी हो सकती है. सो दैट डिपेंड्स ऑन कि यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप यानी VCC तक आप जा सकते हैं, यानी दिस विल अपीयर अक्रॉस as soon as this node voltage VC will reach this VCC, the current through the resistor will drop to 0 and the device will get into cutoff. So what I am emphasizing here is
कि ICRC basically determines your positive swing. ICRC is basically related to your positive swing. ICRC आप जितना स्मॉल रखेंगे उतनी स्मॉल पॉजिटिव स्विंग आएगी, क्योंकि जैसे ही आपने इस नोड वोल्टेज को VCC पे ले गए तो बाय कॉन्सिक्वेंस ऑफ Ohm's law this current will drop to zero and as a consequence BJT will get into cut off. So there is a limit here. यानी VCC इस तरीके से आप लिख रहे हैं तो अगर मैं सारी की सारी VCC VB को दे दूंगा तो मेरे पास कुछ बचेगा नहीं पीछे. This ICRC determines the positive swing. नेगेटिव स्विंग के केस में रिकॉल करें कि VCB should always be greater than -0.4 volt. Should always be greater than or equal to -0.4 volt to avoid saturation. ये आपकी कंडीशन है एक्टिव के लिए. VCB needs to be the total VCB, the total voltage across collector and base junction must always be greater than -0.4 volt, so that CBJ stays cut off, CBJ stays reverse biased, and the mode of the BJT stays active instead of going into saturation. तो ये कंडीशन जब तक आप मीट करेंगे, यहाँ पर आप देखें टोटल वोल्टेज कम होती जा रही है, राइट. ये इस पॉइंट पे ये है टोटल वोल्टेज की वैल्यू. सो ये आपने ये इस ड्रॉप से डिफाइन हो रहा है. सो व्हाट आई एम एम्फसाइजिंग हियर इज कि VCB बेसिकली डिटरमिन्स योर नेगेटिव स्विंग. और आप कह रहे हैं कि VB को बड़े से बड़ा रखो ताकि टेम्परेचर के अगेंस्ट आपको स्टेबल IE मिले. सो VB बेसिकली डिटरमिन्स योर बायस पॉइंट स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर. सो ये मैंने सर्किट का एक कंस्ट्रेंट लिख दिया, राइट. अगेन लेट मी रिपीट दिस. ये सर्किट का ये KVL is providing us with a circuit constraint and KVL is telling us that the total supply voltage VCC is equal to sum of ICRC, VCB and VB. ICRC is related to the positive swing. ICRC basically determines your positive swing exactly. VCB is related to your negative swing. VCB आप कितना रखेंगे that will give us कि negative swing कितनी है. और अगर आपके पास ये enough वोल्टेज अवेलेबल नहीं है तो द ट्रांजिस्टर विल गो टू इनटू सैचुरेशन वेरी क्विकली. जैसे ही आपकी नेगेटिव स्विंग आएगी ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में चला जाएगा. और VB जो है आपके पास वो टेम्परेचर के अगेंस्ट स्टेबल बायस पॉइंट आपको प्रोवाइड कर रहा है. सो अब यहाँ पर इस इक्वेशन को आप एग्जामिन करेंगे. आप VB को अगर बहुत बड़ा कर देंगे तो आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव स्विंग के लिए गुंजाइश बचेगी नहीं. सो दैट मीन्स दीज आर कंस्ट्रेंट्स, दीज आर कॉन्फ्लिक्टिंग कंस्ट्रेंट्स वी हैव. We need positive swing, we need negative swing, and also we need bias point stability. हमें तीनों चीज़ें चाहिए. हमने ये नहीं करना कि हमने एक चीज़ को टोटली कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया और दूसरी चीज़ जो है वो अचीव कर ली. We need positive swing, we need negative swing, and we need bias point stability. So one possible way, which is the generic rule of thumb, is that we give equal priority to all these three entities. So the generic rule of thumb is ICRC is equal to VCB is equal to VB is equal to VCC by 3. तो ये आपका एक जेनेरिक रूल ऑफ थंब है. जेनेरिक रूल ऑफ थंब हम उस वक्त अप्लाई करते हैं जब आपको प्रॉब्लम है गिवन है और उसमें कुछ नहीं बताया गया कि कितनी पॉजिटिव स्विंग रखो, कितनी नेगेटिव स्विंग रखो, क्या इंपॉर्टेंस दो बायस पॉइंट स्टेबिलिटी को, गेन को क्या इंपॉर्टेंस दो. तो अगर आपको इस तरह से स्पेसिफिक बातें नहीं कही गई और आपसे कहा गया कि बस एक डिज़ाइन कर दो, तो देन यू विल अज्यूम के ऑल थ्री key parameters, namely the positive swing, the negative swing, and the bias point stability in terms of temperature, have equal priority. And then you can use the generic rule of thumb as ICRC is equal to VCB is equal to VB is equal to 1 by 3 VCC. Again, ICRC gives you the positive swing, VCB gives you is related to the negative swing, and VB is related to bias point stability in terms of temperature. So the generic rule of thumb implies, this generic rule of thumb implies that you are giving equal priority to all these three conflicting parameters: the positive swing, the negative swing, and the bias point stability in terms of temperature. So हमने स्लाइड में क्या किया, हमने कहा है कि यार ये कंडीशन है VBB needs to be greater than VBE. उसको मैथमेटिकली इक्वेट किया जा सकता है कि VB needs to be greater than VBE, बट VB को ग्रेटर कितना किया जा सकता है, VB को उसका एक अपर लिमिट है. सो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्टिंग ट्रेड ऑफ बिटवीन कि VB को आप कितना बड़ा कर सकते हैं और पॉजिटिव स्विंग और नेगेटिव स्विंग आपको कितनी चाहिए. सो बाय KVL वी रिटर्न अ रूल हियर, VCC is equal to ICRC
plus VCB plus VB, where ICRC is related to the positive swing, VCB is related to the negative swing, and VB determines the bias point stability in terms of temperature. So हमने कहा कि चूंकि हमने एक एम्पलीफायर बनाना है और वो एक प्रैक्टिकल सर्किट है जो हमने इम्प्लीमेंट करने हैं, तो वी हैव टू कीप इन माइंड कि उसमें बाकी भी रिक्वायरमेंट्स हैं. अगर सिर्फ आप बायस पॉइंट स्टेबिलिटी कर देते हैं और वो पॉजिटिव और नेगेटिव स्विंग आपको दे ही नहीं सकता, तो वो इतना यूजेबल सर्किट नहीं है. सो वी हैव टू हैव अ ट्रेड ऑफ among these different parameters, and one possibility which we call a generic rule of thumb is ICRC is equal to VCB is equal to VB is equal to 1 by 3 VCC. And this sort of circuit is used when you have sorry, एक मिनट जरा दे मुझे. जी, तो हम कह रहे हैं कि जेनेरिक रूल ऑफ थंब कैन ओनली बी अप्लाइड जब आपको उसने एग्जैक्टली प्रॉब्लम में नहीं कहा गया कि यार इतनी पॉजिटिव स्विंग आपने रखनी है, इतनी नेगेटिव स्विंग रखनी है, इतनी बायस पॉइंट स्टेबिलिटी आपने करनी है. उस केस में यू जस्ट डिज़ाइन द प्रॉब्लम बाय गिविंग इक्वल प्रायोरिटी टू ऑल द थ्री एंटिटीज़. जी, इसको देखिए ज़रा, ये जेनेरिक रूल ऑफ थंब क्लियर है, ये कॉन्फ्लिक्टिंग ट्रेड ऑफ्स क्लियर है. एनी क्वेश्चन इन दिस? सर जो आपने एक्सप्लेनेशन दी है कि आईसीआरसी जो है हमारे पास ये पॉजिटिव स्विंग को कंट्रोल कर रहा है, सर ये वाला पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन करें. जी, इसके लिए लेट्स ड्रॉ द कंप्लीट एम्पलीफायर सर्किट यूजिंग दिस बायसिंग टोपोलॉजी एंड देन लेट्स अंडरस्टैंड कि इसका क्या मीनिंग है. सो अगर आपने कंप्लीट एम्पलीफायर सर्किट, नाउ दिस इज द बायसिंग टोपोलॉजी दैट वी आर डिस्कसिंग. लेट मी बायस कॉन्फ़िगरेशन पहले हम बना लेते हैं. तो ये बायस सर्किट है. अगर आपने इससे कंप्लीट एम्पलीफायर सर्किट बनाना है तो उसके लिए तरीका ये है, यूजुअली हमारा तरीकाकार ये होता है कि हम डीसी बायस सर्किट को अलग से डिज़ाइन करते हैं और उसके बाद कंप्लीट एम्पलीफायर सर्किट उसका बनाते हैं. तो लेट्स से आपने यूजिंग दिस बायसिंग टोपोलॉजी यू लाइक टू ड्रॉ द कंप्लीट कॉमन एमिटर एम्पलीफायर सर्किट. तो कंप्लीट कॉमन एमिटर एम्पलीफायर सर्किट का मतलब ये है कि उसमें डीसी पार्ट भी है, उसमें एसी पार्ट भी है. एंड व्हाट वी रिक्वायर इज कि डीसी पोर्शन उसका चेंज ना हो. जब आप कंप्लीट एम्पलीफायर सर्किट ड्रॉ करें और वापस उसका डीसी इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं तो वो यही सर्किट आना चाहिए. ये कैसे पॉसिबल है? इफ यू अप्लाई अ कपलिंग कैपेसिटर हियर, सो आपने आउटपुट को कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू अचीव किया, आपने इनपुट अप्लाई की थ्रू अगेन अ कपलिंग कैपेसिटर. इसको हम कपलिंग कैपेसिटर कहते हैं बिकॉज इट कपल्स द इनपुट टू द एम्पलीफायर and it couples the output from the transistor to the load. और क्या तीसरी रिक्वायरमेंट है कॉमन एमिटर के केस में कि दिस शुड बी ग्राउंडेड. लेकिन इसको हम हटा नहीं सकते क्योंकि ये डीसी सर्किट का पार्ट है और डीसी को हम अलग से डिज़ाइन करना चाह रहे हैं. सो ये इसको हम कहते हैं बाईपास कैपेसिटर, बिकॉज फॉर द पर्पज ऑफ एसी इट विल बाईपास रेस्ट ऑफ द सर्किटरी एंड विल अचीव अ परफेक्ट शॉर्ट हेयर. ठीक है, अब देखिए इसका डीसी इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा. डीसी इक्विवेलेंट सर्किट में अगर इसका ड्रॉ करूं, व्हाट वुड बी द डीसी इक्विवेलेंट सर्किट फॉर दिस. डीसी इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने का क्या तरीका है? वीआई को आपने सप्रेस करना है और कैपेसिटर्स को आपने ओपन सर्किट कर देना है, राइट. तो क्या आप सब देख सकते हैं कि इसका अगर मैं डीसी इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करूं तो वही ओरिजिनल बायसिंग सर्किट विल रिकवर. जी देखिए, यही आएगा इसका डीसी इक्विवेलेंट सर्किट. यस सर. तो व्हाट आई एम एम्फसाइजिंग इज कि हमारा नॉर्मली तरीका ये होगा कि हम डीसी बायसिंग को अलग डिज़ाइन करें. तो ये अगर एक डीसी इक्विवेलेंट सर्किट है जिसकी हम सारी एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसको हमने अलग डिज़ाइन करना है. और हम उसके बाद चाहेंगे कि ये जब आप कंप्लीट एम्पलीफायर सर्किट ड्रॉ करें तो आपका डीसी इंटैक्ट रहे ताकि डीसी को इंडिपेंडेंटली डिज़ाइन किया जा सके.
इन स्पाइट ऑफ के एंड ऑफ द डे आपने कॉमन एमीटर इंप्लीमेंट करना है, कॉमन एमीटर विद आर इंप्लीमेंट करना है, कॉमन कलेक्टर इंप्लीमेंट करना है या कॉमन बेस इंप्लीमेंट करना है, ये डिज़ाइन हम सिमिलर यूज़ कर सकें। अब इसका AC इक्विवेलेंट सर्किट आप ड्रॉ करें तो AC इक्विवेलेंट सर्किट में कैपेसिटर्स को आपने शॉर्ट करना है और आपने VCC को भी सप्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं कि एमीटर के ऊपर क्या आ जाएगा, एमीटर के ऊपर यू हैव अ शॉर्ट इन पैरेलल विद, हाँ जी देखिए ज़रा, 0 इन पैरेलल विद RE, so क्या आंसर आएगा? 0. 0, because we are saying कि we have a short in parallel with some resistor RE. Obviously the short will dominate, all the current will flow through the short and REQ the presence जो है as such खत्म हो जाएगी. So we have this common emitter topology here. So let me now come back to the question here. अब आप यहाँ पर देखें, इधर देखिए, इस नोड के ऊपर आपके पास कॉम्बिनेशन है, इधर तो इस नोड के ऊपर क्या आएगा आपके पास, जस्ट आपके पास AC सिग्नल आ रहा होगा। इस नोड के ऊपर आपके पास क्या आएगा, इस नोड के ऊपर यू हैव अ कॉम्बिनेशन, यू हैव AC एंड यू हैव DC पार्ट एज वेल। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि DC बायसिंग में ये जो DC लाइन है इसको क्या सेट किया जाए, इस DC लाइन को क्या सेट किया जाए टू इंश्योर कि आपको पॉजिटिव स्विंग भी रीजनेबल मिले और नेगेटिव स्विंग भी रीजनेबल मिले। सो उसका मतलब ये है कि ये नोड वोल्टेज में अगर आप कम्युलेटिव इफेक्ट देखें इस नोड वोल्टेज पे कि क्या वोल्टेज है VC की, तो ये पॉइंट है, मैक्सिमम क्या है, ये है राइट, इसकी पीक, दिस इज सम ऑफ DC एंड AC। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये पॉइंट जो है दिस, ये अगर एग्जैक्टली VCC पे पहुंच जाता है या इससे पहले अगर आप VCC पे पहुंच जाते हैं टोटल वोल्टेज, तो दिस, ये अभी देखिए इस रजिस्टर के क्रॉस क्या ड्रॉप हो गया, इस रजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप हो गया आपके पास 0 वोल्ट, विच मीन्स दिस करंट इज इक्वल टू 0, विच मीन्स एज सून एज दिस नोड वोल्टेज के ऊपर द cumulative the total voltage goes at VCC, the drop across the resistor RC will drop to 0, and as a consequence the current through this resistor RC will drop to 0, or in other words the collector current IC will drop to 0, and as a consequence the transistor will become cut off. So what we are emphasizing is that this node voltage will basically, इसकी upper limit will determine कि किस वक्त transistor will get into cut off. जी ये ठीक है ये पॉइंट? यस सर, ये वाला पॉइंट तो क्लियर है, लेकिन सर इसके अंदर जो हमारे पास ये VC है, ये वेरी कैसे करेगी वोल्टेज? ये देखिए इसमें जो एक्चुअली ये DC तो आपने फिक्स कर दी ना, ये DC तो आपने फिक्स कर दी राइट, लेकिन इसके ऊपर एक वेरिएशन भी है, ये जो वेरिएशन है, ये जो AC वेरिएशन है वो यहाँ पर तो जस्ट AC आ रही है ना, क्योंकि इस कैपेसिटर की वजह से DC पास नहीं होगा, लेकिन इस नोड पे वी हैव अ सम ऑफ AC एंड DC, तो इस नोड पे जो टोटल VC है आपके पास वो इसके सम की आएगी, तो ये वेरिएशन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो टाइम के अगेंस्ट वेरिएशन हो रही है। सो द टोटल वोल्टेज आपके पास इस तरह का कोई प्रोफाइल आ रहा है राइट, आपके पास टोटल वोल्टेज में ये साइनसोइडल वेरिएशन है, सो इसमें कोई DC का पार्ट भी है और कोई AC का भी, तो टाइम के रिस्पेक्ट से आप देखें तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, इस इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर आपके पास ये टोटल VC की वैल्यू है, इस इंस्टेंट पे ये वैल्यू है, इस इंस्टेंट पे ये वैल्यू है, इस इंस्टेंट पे ये वैल्यू है। सो वी आर कंसिडरिंग द पीक्स के ऊपर भी अगर ट्रांजिस्टर इस पीक तक भी कट ऑफ में नहीं जाता तो देन वी कैन से कि यस इट्स फाइन, इट इज गिविंग अस द फुल स्विंग नीडेड। अगर इससे पहले चला जाता है तो फिर ये क्लिप हो जाएगा, आपकी ये पॉजिटिव स्विंग यहाँ पर कट जाएगी। और सिमिलरली नेगेटिव स्विंग के केस में VCB डिटरमाइंस द क्राइटेरिया, और अगर वो सैचुरेशन में चला जाएगा तो ये लोअर पार्ट विल बी डिस्टॉर्टेड, तो लोअर पार्ट डिस्टॉर्ट हो जाएगा। सो व्हाट वी नीड हियर इज कि फॉर द एंटायर range of the positive swing and for the entire range of the negative swing the transistor should stay inactive, and that is only possible अगर आप पॉजिटिव स्विंग के लिए यहाँ पर ड्रॉप आपके पास इनफ अवेलेबल हो और नेगेटिव स्विंग के लिए ये VCB आपके पास इनफ अवेलेबल हो। अगर ये दोनों चीज़ें आप इंश्योर कर लें तो यू गेट द डिजायर्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्विंग इन द ओवरऑल सर्किट। जी बताइए, ठीक है? यस सर, क्लियर है। So again, this is a generic biasing topology, and we can use it to implement any of the amplifiers. Let me.
सो ये कॉमन एमिटर की मैंने एग्जांपल दी है। हमारा यहाँ पर जब हम कंप्लीट एम्पलीफायर सर्किट ड्रॉ करते हैं तो एक चीज़ हमने कीप इन माइंड करनी है कि आप चाहते हैं कि डीसी इक्विवेलेंट सर्किट इंटैक्ट रहे। बेशक आप कॉमन एमिटर कर रहे हैं, कॉमन एमिटर विद आरई कर रहे हैं, कॉमन बेस कर रहे हैं या कॉमन कलेक्टर कर रहे हैं, the basic DC equivalent circuit must stay intact, must stay the same. So let me show you another example here. Let's say कि हमने इसको यूज़ करना है और इसकी मदद से हमने कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर बनाना है। सो वी लाइक के कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो वी विल यूज़ coupling and bypass capacitors to ensure that the equivalent DC network stays the same, वो उसमें फ़र्क ना पड़े। अगर आप कपलिंग कैपेसिटर्स और बाईपास कैपेसिटर्स को प्रॉपरली नहीं प्लेस करेंगे तो देन द डीसी इक्विवेलेंट सर्किट विल बी डिफरेंट फ्रॉम दिस वन एंड यू मे हैव टू रीडिज़ाइन, और उसको इंडिपेंडेंटली ट्रीट करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। सो इट इज़ यूजुअली प्रिफर्ड व्हेन यू ड्रॉ द complete amplifier circuit for this biasing topology you make use of bypass capacitors। तो अभी हम ये चाह रहे हैं कि हम कॉमन कलेक्टर बनाएं, तो बताइए कि बाईपास कैपेसिटर आपको कहाँ चाहिए फॉर कंप्लीट कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर सर्किट implemented using this biasing topology. Where do you need a bypass capacitor? Sir, at node VC. At the collector, right? Why? Because we want के for the purpose of AC equivalent circuit, ये capacitor will act as a short circuit and will bypass rest of the circuitry and ensure common collector topology. Common collector के केस में input आप apply करते हैं at the base terminal, R signal, V signal, and output आप लेंगे at the emitter terminal. So this is your complete amplifier circuit for common collector application. ये आपका complete amplifier circuit है। complete का मतलब ये है कि इस तरह का सर्किट आप बना के लैब में चलाएंगे तो it will work, it has all the ingredients present in it। इसमें DC biasing भी है, इसमें AC portion भी है, ये complete workable solution है आपके पास। इसका equivalent DC equivalent circuit आप draw करें तो you will find out कि वो यही आना चाहिए, क्योंकि ये कैपेसिटर ओपन हो जाएगा, ये कैपेसिटर ओपन हो जाएगा और ये कैपेसिटर ओपन हो जाएगा, तो यू आर लेफ्ट विद द ओरिजिनल डीसी बायस नेटवर्क। और इसका अगर आप एसी इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करें तो यू विल फाइंड आउट कि आपको कॉमन कलेक्टर टोपोलॉजी मिल रही है। हाउएवर एसी इक्विवेलेंट सर्किट में आपका एक एडिशनल ये आरई आ रहा होगा, ये R1 R2 आ रहा होगा। सो ये बाइसिंग की वजह से आपको एडिशनल रेजिस्टर्स मिलेंगे जो पहले हमने एसी एनालिसिस की थी उसमें वो नहीं मिल रहे थे। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द बाइसिंग कि आपका ओवरऑल कंप्लीट एसी इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा। इसलिए मैंने पहले भी एम्फेसाइज किया था कि आपने जो हमने एंड पे रिजल्ट्स निकाले उन्हें याद नहीं करना, उनको निकालने का तरीका सीखना है, बिकॉज द एसी इक्विवेलेंट सर्किट विल बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द बायसिंग स्कीम बीइंग यूटिलाइज्ड। सिमिलरली एक और एग्जांपल कर लेते हैं। लेट्स से कि मैंने कॉमन एमीटर विद आर स्मॉल ई बनानी है, ठीक है। ये आर स्मॉल ई का मतलब ये है कि जब मैं एसी इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करूं तो उसमें जो मुझे टोटल रेजिस्टेंस नजर आए दैट शुड बी दिस कैपिटल आर स्मॉल ई। सो एनी आइडिया? चलें पहले तो हम इनपुट और आउटपुट अप्लाई कर देते हैं और फिर मुझे बताएं कि एमीटर के केस में ये आपके पास सर्किट है। सो जब मैं कहता हूं कि कॉमन एमीटर विद आर स्मॉल ई मुझे चाहिए, आर स्मॉल ई इज डिफरेंट फ्रॉम दिस कैपिटल आर कैपिटल ई। कैपिटल आर कैपिटल ई इज अ रिक्वायरमेंट फॉर बायसिंग एंड इट इज डिजाइंड ऑन द वे टू इंश्योर कि आपको प्रॉपर डीसी बायस डिजाइन आपका हो गया है। सो कॉमन एमीटर विद आर ई है, उसमें इनपुट तो आप यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, राइट। ये तो उसी तरह ही हो गया जिस तरह हम पहले बात करते आए हैं। आउटपुट आप कलेक्टर पे ले लेंगे, ठीक है, दिस इज ओके। ये मुझे बताएं कि इसको इधर क्या एडजस्टमेंट करें, इधर क्या करें, कैसे इंश्योर करें कि जब आप एसी इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करें तो यू गेट दिस वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन द एमीटर। हाउ टू इंश्योर दैट? Sir, capacitor in series with RE. Capacitor in series with, let me call this resistance R1. Now tell me कि क्या ये capital R1 should be equal to capital R small e or should it be something else? Keep in mind कि हमारी requirement ये है कि जब आप AC equivalent circuit draw करें तो जो आपको equivalent resistance नजर आए for in the AC equivalent circuit that should be this capital RE। अब देखिए जब आप AC equivalent circuit draw करेंगे तो आपको AC equivalent circuit के केस में एमीटर में क्या रेजिस्टेंस नजर आ रही होगी, बताइए जरा। AC equivalent सर्किट में कैपेसिटर विल शॉर्ट, राइट। तो जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस
AC इक्विवेलेंट सर्किट के केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो मीटर में आपको नजर आ रही होगी उसकी क्या वैल्यू होगी? कैपिटल E, सर R1 पैरेलल विद RE। एग्जैक्टली, R1 पैरेलल विद कैपिटल RE, राइट? तो आपने यानी आपने ये इंश्योर करनी थी। सो दिस मीन्स कि आपने चूंकि ये इंश्योर करनी है तो यू विल मेक श्योर कि आप R1 की ऐसी वैल्यू निकालें जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, बिकॉज दिस इज व्हाट यू नीड। कैपिटल R स्मॉल ई कोई वैल्यू आपको दी गई है कि यार ये इंश्योर करो, तो आप R1 की ऐसी वैल्यू कंप्यूट करेंगे कि कैपिटल R कैपिटल E इन पैरेलल विद कैपिटल R1 इक्वल्स टू कैपिटल R स्मॉल ई। जी ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। सिमिलरली कॉमन बेस कंप्लीट एम्पलीफायर भी आपने इस बायसिंग टोपोलॉजी से बना सकते हैं, वो आप बनाइएगा, उसमें ट्राई कीजिएगा। कॉमन बेस के केस में यू हैव टू इंश्योर कि बेस इज ग्राउंडेड, तो बेस के ऊपर आपने बाईपास कैपेसिटर चाहिए। इनपुट विल बी अप्लाइड एट द एमीटर, आउटपुट विल बी टेकन एट द कलेक्टर थ्रू कपलिंग कैपेसिटर्स। सो अगेन कीप इन माइंड कि जब आप कंप्लीट एम्पलीफायर सर्किट ड्रॉ करते हैं तो यू वांट टू इंश्योर कि डीसी सर्किट स्टेज इन कॉन्टैक्ट, डीसी circuit does not change. So the rule of thumb that we have established is VB is equal to 1 by 3 VCC, VCB is equal to 1 by 3 VCC, and ICRC is equal to 1 by 3 VCC. And we are calling this a generic rule of thumb and is applicable when other specifications are not available. अगर आपको प्रॉब्लम में कहा जाएगा कि लेट्स से 2 वोल्ट की एग्जैक्ट पॉजिटिव स्विंग इंश्योर करो, तो फिर आप जेनेरिक रूल ऑफ थंब पे नहीं चलेंगे, फिर आप उसके मुताबिक चलेंगे। जेनेरिक रूल ऑफ थंब आप तब यूज़ करेंगे जब आपको प्रॉब्लम में नहीं बताया गया एंड यू डोंट रियली नो कि क्या प्रायोरिटी है, वेदर पॉजिटिव स्विंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट और वेदर नेगेटिव स्विंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट और बायसमेंट स्टेबिलिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक्स वहाँ पर क्लियरली स्पेल आउट कर दिए गए हैं तो फिर हम उसके मुताबिक चलेंगे। तो दोनों तरह की एग्जांपल्स हम अभी आगे सॉल्व करके देखेंगे। फर्स्ट वी विल अप्लाई दिस जेनेरिक रूल ऑफ थंब टू डिज़ाइन अ पर्टिकुलर सर्किट एंड लेटर वी विल आल्सो सी कि जब आपको सेट ऑफ स्पेसिफिकेशंस दी जाती हैं तो तब आप कैसे प्रोसीड करते हैं। सो ये कंडीशन 1 की हमने बात कर ली, कंडीशन 1 की बेसिस पे हमने जेनेरिक रूल ऑफ थंब इस्टेब्लिश कर लिया। लेट्स नाउ टेक अ लुक एट कंडीशन 2। सो कंडीशन 2 हमें क्या कह रही है? कंडीशन 2 हमें कह रही है कि RB should be very small, RB by beta plus 1 should be very small relative to RE. So what that means is कि RB needs to be small. क्या implication है RB को small करने की? रिकॉल करें कि RB is R1 in parallel with R2. तो अगर RB को small रखना है तो R1 R2 को भी small होना चाहिए. So if RB is small, then R1 R2 must be small. So R1 R2 को small करने का क्या मीनिंग है, क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? Again, let's go back to the complete amplifier circuit. Let's take a look at common emitter topology. So ये देखिए ज़रा, ये आपकी common emitter topology है, right? So इसमें देखिए अगर मैं इसका AC equivalent circuit ड्रॉ करूं तो AC equivalent circuit मेरे पास क्या आएगा? ये आपके पास R1 है, you have this R2, ये आपने VCC को सप्रेस कर दिया, ये आपके पास RE है, RE इन पैरेलल विद शॉर्ट है, तो RE आपके पास AC इक्विवेलेंट सर्किट के रिस्पेक्ट से खत्म होगी, राइट? सो आई एम ड्राइंग द AC इक्विवेलेंट सर्किट हियर टू एम्फसाइज के वहाँ पर ट्रेड ऑफ क्या है, R1 R2 को छोटा रखने का क्या मीनिंग है। यहाँ पर मेरे पास देखिए RC और ये शॉर्ट हो गया, राइट? ये कैपेसिटर भी शॉर्ट हो गया, सो RC और RL मेरे पास पैरेलल में आ गए, RC in parallel with RL. This capacitor is a short, R signal, V signal. जी ठीक है, ये देख सकते हैं सब लोग, यही बनेगा इसका इक्विवेलेंट सर्किट। ये AC इक्विवेलेंट सर्किट मैंने ड्रॉ किया, ठीक है जी, एग्री करते हैं इससे? यस सर। अब देखिए इसमें आप Rin कैसे निकालते हैं। Rin आप कहते हैं कि यार इसकी पोर्ट इनपुट पोर्ट आइडेंटिफाई करो और उस पर Rin निकालो, ठीक है। लेट मी कॉल दिस रेजिस्टेंस एज सम अननोन वेरिएबल, लेट्स कॉल इट RB।
मुझे बताइए यहाँ पर आर इन टर्म्स ऑफ आर बी एंड R1 एंड R2 क्या लिखूँ? आर बी जो भी है वो अभी हम निकालने में इंटरेस्टेड नहीं हो, हम निकाल सकते हैं स्मॉल सेकेंड इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे एंड सो ऑन। अभी हम फोकस ये कर रहे हैं कि R1 R2 को स्मॉल रखने का क्या सिग्निफिकेंस है। जी ज़रा बताइए इधर, अगर दिस रेजिस्टेंस लुकिंग इनटू दिस पोर्ट इज RB एंड दिस इज R1 एंड दिस इज R2, तो आर इन को किस तरह एक्सप्रेस किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ R1 R2 एंड RB? जी तीनों पैरेलल नहीं है, क्या कहते हैं? क्योंकि ये लुकिंग इनटू दिस आरबी का मतलब ये है कि रेजिस्टेंस में डिफाइन कर रहा हूँ इस पूरे को वन पोर्ट नेटवर्क के तौर पे ट्रीट करते हुए बिटवीन दिस नोड एंड ग्राउंड। सो एक्चुअली जो इक्विवेलेंट आपके पास आ गया तो आपके पास R1 है, R2 है और RB है, ये इक्विवेलेंस है। RB की जो भी वैल्यू है वो हम कह रहे हैं अभी नहीं निकाल रहे हैं, हम बाद में निकालेंगे। ये मैं कह रहा हूँ कि ये Rn है। जी देख सकते हैं तीनों पैरेलल है, राइट? सो वी आर सेइंग कि R1 इन पैरेलल विद R2 इन पैरेलल विद RB। अब बताइए कि RB अगर लेट से बहुत लार्ज भी है, जब आपके रेजिस्टर्स पैरेलल में आते हैं तो द स्मॉलर वन डोमिनेट्स, राइट? द स्मॉलर वन के क्लोज आपकी ओवरऑल इनपुट रेजिस्टेंस आती है। तो RB को मैं जितना मर्जी अच्छा डिज़ाइन करता रहूँ और RB को लार्ज भी रख लूँ तो R1 R2 अगर स्मॉल होंगे तो ओवरऑल Rin आपको स्मॉल ही मिलेगी, राइट? अगर R1 R2 स्मॉल हैं तो ओवरऑल Rin will be dominated by this R1 R2. If RB is large and R1 R2 are small, तो Rin will be close to the smallest values. So that means कि R1 R2 को अगर स्मॉल हैं तो that is undesirable, क्योंकि हमने पहले भी बात की है कि Rin जितनी लार्ज हो उतना बेहतर है। So we have a conflicting set of constraints as well. जी ये कंडीशन के साथ रिलेट कर सकती हैं। हमने एस्टेब्लिश किया कि RB नीड्स टू बी स्मॉल। RB नीड्स टू बी स्मॉल का मतलब ये है कि R1 इन पैरेलल विद R2 विल बी स्मॉल, बट देयर इज अ कन्फ्लिक्टिंग कंस्ट्रेंट हियर कि इफ यू हैव R1 एंड R2 स्मॉल देन Rin विल बी स्मॉल। दैट इज नॉट वेरी डिजायरेबल बिकॉज Rin नीड्स टू बी लार्ज। सो इस सेकेंड कंडीशन को भी मीट करते हुए वी हैव कंस्ट्रेंट्स हियर एज वेल। सो हम कह रहे हैं कि ठीक है R1 आपको बीटा के टर्म्स में अच्छी स्टेबिलिटी मिलेगी अगर आप R1 R2 को छोटा रख सकें, लेकिन R1 R2 को छोटा रखने का मतलब ये है कि यू हैव अनदर प्रॉब्लम हेयर कि R1 R2 को छोटा रखने का मतलब ये है कि Rin आपकी छोटी हो गई है। सो यू हैव अ कंस्ट्रेंट हेयर एज वेल कि आप बीटा के टर्म्स में बहुत अच्छी स्टेबिलिटी अचीव कर लें या आप अच्छी Rin अचीव कर लें। सो अगेन देयर इज अ ट्रेड ऑफ, सो वी नीड अ रूल ऑफ थंब हेयर एज वेल जो कि हमें एक रीजनेबल Rin भी दे दे और एक रीजनेबल बायस पॉइंट स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ बीटा भी प्रोवाइड कर ले। सो जो हम यहाँ पर रूल लेकर चलेंगे वो ये है आपका IR2 can either set equal to 0.1 IE or we will set equal to IE. सो इस रेंज में टिपिकली आप कर सकते हैं, हम नॉर्मली इसकी लिमिट्स पे ही करेंगे। सो वी विल ईदर सेट IR2 इक्वल टू 0.1 IE or we will set IR2 equal to IE. अब देखें अगर IR2 equal to IE है तो ये लार्जर करंट है, which means smaller Rin, better bias point stability in terms of beta. IR2 को अगर आप 0.1 IE रखते हैं तो इसका क्या मतलब है? Relatively larger Rin, relatively poorer bias point stability in terms of beta. So depending on the application at hand कि आपको प्रॉब्लम में क्या कहा जाता है। अगर आपको कहा जाता है कि यार Rin is the priority, you can relatively compromise on the bias point stability in terms of beta, so then the choice would be smaller IR2 equal to 0.1 IE. अगर आपको प्रॉब्लम में कहा जाता है कि we can't compromise on the bias point stability in terms of beta, we can, इट्स फाइन अगर Rin थोड़ी स्मॉलर भी आ जाती है तो फिर आप ये सेकंड चीज़ चूज़ करेंगे IR2 इक्वल टू IE। ये देखिए क्या ये कंडीशंस समझ आती हैं? ठीक हो गया ये कंडीशंस? जी इसमें कोई क्वेश्चन हो? नो सर। So let's now quickly apply this generic procedure and solve a problem.
So this is example 620. We need to design the bias network of the amplifier to establish a current IE equal to 1 milliamperes. VCC is given and is 12 volt. The transistor is specified to have beta equal to 100. अब देखें इसमें उसने कुछ नहीं बताया कि यार इतनी पॉजिटिव स्विंग आपने रखनी है, इतनी नेगेटिव स्विंग रखनी है, ये इंपॉर्टेंस बायस बैंड स्टेबिलिटी की है, इतना आप आरएन रखो, आरएन इंपॉर्टेंट है यहाँ, मतलब कुछ नहीं बताया, तो जेनेरिक उसने बात की है. सो वी विल यूज द जेनेरिक रूल ऑफ थंब. सो इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर स्टेबिलिटी द जेनेरिक रूल ऑफ थंब गिव्स अस ICRC equal to VCB equal to VB must be equal to 1 by 3 VCC, and since VCC is 12 volts, so 1 by 3 VCC is 4 volt. So we are saying कि यार इसको 4 volt आपने रखना है. This VCB must be equal to 4 volt, and this voltage between ground must also be 4 volt. ठीक है, ये आपके पास आ गया कि ये सारा कुछ आपने 4 volt रख लेना है. So that means ICRC is equal to 4 volts. So यहाँ से RC निकाला जा सकता है 4 divided by IC. IE आपको गिवन है, बीटा भी आपको गिवन है. IE is 1 milliamps and IC is equal to alpha IE, and since beta is given and beta is 100, so alpha must be equal to 0.9901. So IC is equal to 0.9901 milliamperes. So यहाँ से हम IC की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके हमने रेडिली RC को निकाल लिया. तो RC आपके पास यहाँ से आ जाएगा, let me see, 4.04K. Since this is 0.7, so this node voltage must be 3.3 volt. So आपके पास IE RE must be equal to 3.3, which implies RE is equal to 3.3 kilo ohms. तो आपके पास RC आ गया, आपके पास RE भी आ गया, और जेनेरिक रूल ऑफ थंब से हमने इसलिए स्टडी स्टार्ट किया कि उसने हमें नहीं बताया कि इतनी पॉजिटिव स्विंग रखनी है, इतनी नेगेटिव स्विंग रखनी है. उसने जस्ट हमें जेनेरिक एक सेट ऑफ हमें कह दिया कि बस IE इज इक्वल टू 1 मिलीएम्प के लिए डिज़ाइन करो. तो इसलिए हमने ज्यूम किया कि तीनों चीज़ों की इक्वल प्रायोरिटी है, पॉजिटिव स्विंग की, नेगेटिव स्विंग की और बायस बैंड स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर की इक्वल प्रायोरिटी है. एंड बेस्ड ऑन दैट इक्वल प्रायोरिटी we proceeded with the design and determine the value for RC and RE. Additionally इसने हमें ये भी नहीं बताया कि RIN is more important, यहाँ बायस बैंड stability in terms of beta is more important. आप रिकॉल करें कि IR2 can either be equal to 0.1 IE and IR2 can either be equal to IE. ये दो possibilities है. Since हमें कुछ नहीं बताया गया कि बीटा की टर्म्स में बायस बैंड स्टेबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या RIN ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम इन दोनों केसेस के लिए इसको डिज़ाइन करेंगे. सो इन दोनों केसेस में हम इसको डिज़ाइन करेंगे. सो वी विल हैव टू पॉसिबल डिज़ाइंस. दोनों केसेस में RC एंड RE विल बी द सेम, लेकिन R1 एंड R2 की वैल्यूज़ विल बी डिफरेंट बेस्ड ऑन कि हमने IR2 को 0.1 IE चूज़ किए या IR2 को हमने IE चूज़ किए. लेकिन IR2 0.1 IE का मतलब है कि वो 0.1 मिली एम्पेयर्स होगा. IR2 इक्वल टू IE का मतलब है कि वो 1 मिली एम्पेयर्स होगा. सो वी गेट टू डिज़ाइंस हियर, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल आल्सो इवेल्युएट दोस टू डिज़ाइंस. जो अभी तक हमने क्लेम किया कि ये बीटा के टर्म्स में अगर आप IR2 को IE रखते हैं तो बीटा के टर्म्स में बेटर स्टेबिलिटी हमें देता है, बायस बैंड स्टेबिलिटी, और अगर IR2 को आप 0.1 IE रखते हैं तो वो आपको कम स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा इन टर्म्स ऑफ बीटा. वी विल क्वान्टिफाई दैट क्लेम, वी विल परफॉर्म द एनालिसिस. बीटा की एक सर्टेन वेरिएशन के लिए हम इसको एनालाइज करेंगे. वी विल डिटरमिन द परसेंटेज चेंज इन IE एंड वी विल एस्टेब्लिश कि क्या वाकई ऐसा है इन टर्म्स ऑफ टेंजिबल नंबर्स. वी विल सी के जो हमारा क्लेम है, वी विल वैलिडेट दैट क्लेम इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल. सो इसको क्विकली कंप्लीट कर लेते हैं. इस पार्ट में आप देखें IR2 को हम 0.1 IE रखना चाह रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि यार दिस करंट इज 0.1 मिली एम्पेयर्स, और VB हमें पता है VB 4 वोल्ट है, तो रेडिली ओम्स लॉ लगा के R2 की वैल्यू निकाली जा सकती है. R2 इज 4 डिवाइडेड बाई 0.1 मिली विच इज इक्वल टू 40K. IR1 निकालने के लिए आप ओम्स लॉ लिख सकते हैं,
ये पैसिव साइन कन्वेंशन है, VCC माइनस VB डिवाइडेड बाय R1। सो यहाँ पर R1 की वैल्यू अभी हमने निकालनी है। सो R1 इज 8 डिवाइडेड बाय IR1, और IR1 आपके पास कैसे आएगा? ये IR2 आपको पता है, ये IB आपको पता है, क्योंकि आपको IE पता है, आपको IC पता है, तो IB आप रेडिली निकाल सकते हैं। सो IR1 इज जस्ट इक्वल टू IB plus IR2, right? So using this relation, IR1 can be determined and then substituted here to determine the value of R1. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि R1 will be equal to 72.793 किलो ohms। तो ये जस्ट ओम्स लॉ है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा स्पीड अप किया। आई थिंक इट्स ओके। जी ये ठीक है, ये वर्किंग ठीक है। यस सर। सो सिमिलरली डिज़ाइन 2 के लिए भी सेम स्टेप्स रिपीट करें। IR2 को अगर आप IE के इक्वल रख लें तो यू विल हैव डिफरेंट वैल्यूज फॉर R2 एंड R1। सो रिपीटिंग द सेम प्रोसीजर, डिज़ाइन 2 के लिए IR2 will be R2 will be 4K and R1 will be R2 will be equal to 4K and R1 will be equal to 7.9216 किलो ohms। तो आप देख सकते हैं कि R2 R1 की वैल्यू स्मॉलर आई हैं इस डिज़ाइन 2 के केस में, क्योंकि करंट लार्जर था। तो यहाँ पर Rin is equal to R1 in parallel with R2 is smaller relative to the design 1। डिज़ाइन 1 में देखें ये 40K है, ये 72K है, तो यहाँ पर R1 in parallel with R2 will be larger। However, we'll see कि this design 2 will provide us with better bias point stability। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में कल इसको करेंगे, एक और एग्जांपल को, विच इज़ सॉर्ट ऑफ एन एक्सटेंशन ऑफ दिस एग्जांपल। सो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके वी विल फाइंड आउट कि अगर बीटा की सर्टन रेंज में चेंज आ रही है तो इन दोनों डिज़ाइंस में क्या कंपैरिजन है। सो वी विल क्वांटिफाई आवर क्लेम दैट डिज़ाइन 2 विल गिव अस बेटर bias point stability in terms of beta compared to design 1 which gives us lesser bias point stability in terms of beta। So we will continue। आज का लेक्चर हम यहाँ पर एंड करते हैं। नेक्स्ट टाइम वी विल डू दैट प्रॉब्लम, एंड वंस वी अंडरस्टैंड कि बीटा के टर्म्स में जो वेरिएशन है वो किस तरह से डिज़ाइन 1 और डिज़ाइन 2 को इम्पैक्ट कर रही है, देन वी विल proceed with the rest of the biasing schemes available to us। So आज का लेक्चर यहाँ पर एंड करते हैं। टुमारो हम कंटिन्यू करेंगे, इसी प्रॉब्लम को आगे बढ़ाएंगे।